So, Padharo Mhare Desh. Let's start the session of Rajasthan today. As we all know, Jaipur is the capital of Rajasthan. It is also called as Pink City. अब बहुत सारे लोगों को वो ये नहीं पता why it is painted as a pink. The story behind that is very simple. During the British Raj, the British prince was coming to Jaipur, and to welcome him, तो जो राजा था, he decided कि I should paint the whole city. So उसने बुलाया पेंटर को कि ये पूरी सिटी जो मेन सिटी है उसको पेंट करना है. एंड ही सेड कि मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर आई कैन यूज डिफरेंट कलर्स ऑल टुगेदर और आई कैन गिव यू वन सिंगल कलर एंड दैट इज आई हैव द पिंक अवेलेबल ओनली. सो द मेन थिंग वाज कि उसके पास पिंक कलर ही मेन था, इसलिए उसने पूरी सिटी को पिंक में पेंट कर दिया, सिंगल कलर में, एज पर द choice of the Raja has no other choice to accept the pink as a single color option. So that walled city now is being, in February this year, it has become a World UNESCO Heritage City. This is the second heritage city in India after Ahmedabad. So we have very good monuments, heritage monuments. So we will go through each of them. On the right side is Hawa Mahal. We each know about this Hawa Mahal or Wind Palace it is called as. This is second one is Jawahar Circle Garden Entry Gate. This is also called as Patrika Gate. Beautiful location. आपको बहुत सारे आपको पिक्चर्स इसके अंदर की मिलेंगी, बाहर की मिलेंगी, but beautiful it is and looks awesome. Within the city, another location is City Palace. अब City Palace में जो पीछे का हिस्सा देख रहे हो, this yellow portion, this belongs to the Maharaja even now. The royal family still lives there. और यहाँ पे अगर उसकी टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैग्स लगाए जाते हैं. उन फ्लैग को देख के जिनको पता है वहाँ के लोकल्स को या आपके गाइड को, वो उस फ्लैग को देख के, उसके कलर को देख के बता सकता है कि द राजा प्रेजेंट राजा महाराज इज ऑलरेडी इन द पैलेस और नॉट. बिकॉज जब वो वहां पे मौजूद होता है तो उसके लिए अलग फ्लैग एक अलग लगाया जाता है. व्हेन ही इज अवे अनदर फ्लैग इज देयर. सो दीज आर द गेट्स एंड इनसाइड ऑफ दिस सिटी पैलेस. Another locations to visit is Albert Hall Museum. Beautiful location and wonderful to watch in the evening as well. And we have Jantar Mantar. Jantar Mantar was made by Savai Jai Singh, and this was basically to check the time as well as the other जो चांद सितारों को देखने के लिए एस्ट्रोनॉमी बेस पे ये बनाया गया था. Jantar Mantar is also available in Delhi and made by the same king Raja Jai Singh. This is the Central Park. This is the Stonehenge of India. Most of the people don't go there. You can have you or your customer can have a beautiful walk in the morning while visiting this small Stonehenge of India. And then we have just against the Hawa Mahal, we have the Jawahar Market, the local market of Jaipur. Beautiful to take the handicrafts and other items from there. In the evening, how can you don't go to Chokhi Dhani, a place to visit? वहाँ पे local dances are available. The food is awesome. There are two category of food. One is deluxe one and one is normal one. Deluxe में जो है वो the AC hall is there. Another one is without AC. Both the food quality is almost similar. Just the difference is a sitting area and in between as well.
अब हम जयपुर से थोड़ा बाहर की तरफ निकलते हैं तो वी कैन इजीली लोकेट द अंबर फोर्ट. आमेर फोर्ट एंड अंबर फोर्ट इज द सेम थिंग. सिर्फ नाम का लिखने का या बोलने का डिफरेंस है. द थिंग इज सेम. आमेर फोर्ट एंड और अंबर फोर्ट. बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि आमेर फोर्ट में शाम को गर्मियों में 7:30 बजे और सर्दियों में 6:30 बजे लाइट एंड साउंड शो होता है. एंड इट्स वर्थ टू वॉच. इट कॉस्ट यू अराउंड 750 रुपीज पर पर्सन. एंड इट्स वर्थ टू वॉच एट दैट टाइम, क्योंकि उसमें पूरा इसकी हिस्ट्री बताई जाती है विद लाइट एंड साउंड. सो लुक्स ऑसम एट दैट टाइम. ये उसका आउटर पिक्चर है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. So everything comes into the greenery, everything comes into the life at that time. और उसी एरिया में आपके अगर आप जाएंगे रास्ते में आपको पहले जल महल देखते हुए जाएंगे आप आमेर फोर्ट में. और जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट आपको मिलेगा. दिस नाहरगढ़ फोर्ट हैज द बिगेस्ट कैनन इन द वर्ल्ड. जियावाना इज कैनन इज द नेम ऑफ द कैनन. इसको सिर्फ एक बार आज तक चलाया गया था. अनफॉर्चुनेटली जितना नुकसान सेकंड पार्टी का हुआ था उससे ज्यादा नुकसान हमारा अपना हो गया था. रीजन 3000 से ज्यादा बर्ड्स इसकी आवाज सुन के शॉक वेव से मर गए थे. बहुत सारे बच्चे छोटे जो हैं जो बिल्कुल पास में थे जिनके घर वो बहरे हो गए थे. और later it was decided कि we will not use this cannon never again. But still it has a world record of the biggest cannon in the world. Then we have ऐसा कोई शहर ही नहीं हो सकता जिसमें कोई टेम्पल ना हो इंडिया में. So we have बिरला मंदिर and गलता जी टेम्पल over there. गलता जी टेम्पल में आपको बहुत सारे बंदर भी मिलेंगे. Monkeys are always there, but so don't worry. These are beautiful locations. जयपुर के बाद हम चलते हैं, हम पिंक से जाते हैं ब्लू की तरफ. तो we are going to have the blue city of Jodhpur. It is the second biggest city in Rajasthan. Why it is colored as blue has different stories altogether. But एक simple अगर एक logic की बात करें तो blue color is a cool, give you the cool feeling. जोधपुर is also called as the sun city because यहाँ पे sun rays जो है बहुत ज़्यादा आती हैं. So to reduce the heat, people start painting their color in blue color कि उसका जो इफेक्ट है वो आंखों के लिए भी सूदिंग हो और अंदर भी टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस आए. That was the reason it was called as the blue city. पहले कुछ लोगों ने किया, फिर काफी सारे लोगों ने किया. Now it is become जो भी मेहरानगढ़ फोर्ट के आसपास का एरिया है उसमें ज्यादातर आपको घर ब्लू कलर में ही दिखेंगे. So it becomes a identity of the city called as blue city. देखने के लिए सबसे मेन तो मेहरानगढ़ फोर्ट है. मेहरानगढ़ फोर्ट इज द ओनली फोर्ट विच वाज नेवर वन बाय एनी अदर किंग. किसी दूसरे राजा ने जब भी मेहरानगढ़ फोर्ट पे चढ़ाई करने की कोशिश करी, इनके साथ लड़ाई करने की कोशिश करी, इस फोर्ट को कभी नहीं जीता गया दूसरे से. इट इज द ओनली फोर्ट इन इंडिया. और उसके आगे जो आप ये टेम्पल देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज जसवंत थड़ा. Sir, request, please don't make the drawing on the screen. So, ये जसवंत थड़ा है, the temple, and you cannot imagine Jodhpur without the Umaid Bhawan Palace, which is ranked in the top 3 hotels in the world as well. In fact, इसका जो राइट साइड का पोर्शन है, लेफ्ट साइड का सॉरी, इसका लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है, इट इज स्टिल यूज्ड बाय द किंग. तो वहां पे किंग अभी भी रहते हैं. और कभी कभार अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद जो रॉयल फैमिली है उनसे आप मिल पाए. इट इज अ वेल नोन डेस्टिनेशन
for marriage destination as well. Nick Jones और प्रियंका चोपड़ा की शादी यहीं हुई. Many more celebrities has been taken their weddings over here. इसके अलावा आसपास देखने की जगह जो है वो है तुर्जी का झालर. दैट इज ए स्टेप वेल, वेरी फेमस स्टेप वेल, मेड बाय ए लालाजी फैमिली बेसिकली. तो उनका नाम था तूरचंद लालाजी, उनको बोलते थे. उन्हीं के नाम से ये आज तुर्जी का झालरा के नाम से फेमस है. एंड देन वी हैव मंडोर गार्डन्स. दिस इज basically temple complex with gardens nearby, so you can visit Jodhpur like this as well. Now, next will be our Jaisalmer city. Jaisalmer is the border district of Rajasthan, known as the Golden City. Reason कि जो most of the city is, जो भी हम सिटी में हम घर बनाते हैं वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी, जिस तरह के पत्थर पुराने टाइम में पत्थरों से घर बनते थे, तो जो अवेलेबल होता था पास में उसको यूज किया जाता था. इन राजस्थान, इन अराउंड जैसलमेर, the yellow sandstone is more available, which shines like a gold during the sunset and the sunrise. So the name comes as Golden City. So this on the top picture, this is the Jaisalmer fort or the Sonar Killa it is called as. So this is the only unique fort where the whole city lives within the fort only, even now. So you can have shopping complex, shops, houses, people आज लोग आज रहते भी हैं. टेम्पल, जैन टेम्पल इज देयर, सो होटल्स भी हैं, आपको सब कुछ. इट इज द ओनली फोर्ट वेयर द पीपल आर स्टिल लिविंग. उसी के वहीं पे सिटी के अंदर ही आपको जो पुरानी सिटी है, महल जो है सोनार किला, उसी के अंदर आपको देखने की वेरी फेमस 2 points, दैट इज पटवों की हवेली एंड सलीम सिंह की हवेली आर द 2 main attractions in that, other than the palace and those temple. Within the city you can go to the Gadi Sagar Lake. Gadi Sagar Lake is a man-made lake because पानी की कमी होती है, so this was made as a reservoir to collect the water. And then out of when we go towards the some sand dunes, we can visit Bada Bagh. Bada Bagh, these are called as canotops. Basically इनको हिंदी में छतरियां बोलते हैं. ये राजा और उनके परिवार में जो एक्सपायर होता था उनके नाम की एक नई छतरी बना दी जाती थी. तो ये राजा के परिवार की ही उनकी एक्सपायर होने के बाद उनको जो भी किया गया, उसके बाद उनके हर एक के नाम की एक छतरी बनाई गई जो आज कलेक्ट होके बड़ा बाग के नाम से कहलाती है. जैसलमेर में अगर हम सैंड ड्यून्स की बात करें तो दे आर 2 सैंड ड्यून्स. बोथ आर लोकेटेड अराउंड 40 kilometers from the Jaisalmer city. One is called as Khurri, second one is Sand Dunes. Khurri sand dunes is it is less crowded. यहाँ पे कैंप्स भी कम होंगे आपको, एंड आपको जो पॉपुलेशन भी अगर मिलेगी, जो लोग वहाँ पे विजिटर्स भी होते हैं, उसमें फॉरेनर्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है. खुर्री के जो ड्यून्स हैं वो सम से ज्यादा बड़े हैं, उससे ज्यादा साफ हैं, बट द वे 40 kilometers इज ए सिंगल वे. एक सिंगल रास्ता है, ऐसा नहीं कि जाम लगता है, खाली होता है रोड, बट रास्ते में जो है आपको कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं. अवे फ्रॉम द सिटी है बिल्कुल, आसपास यहाँ तक कि रोड से भी थोड़ा सा दूर है ये ड्यून्स. लेस क्राउडेड, लेस कैंप्स. जो लोग एकांत पसंद करते हैं, शांति चाहते हैं, दे कैन विजिट दिस. अनदर वन इज सम सैंड ड्यून्स. जो भी जैसलमेर जाता है, 90% of our domestic crowd, 95% of the domestic crowd comes to some sand dunes. Inventory is not a problem, bang on the highway, so
Because of all this, it is much more camps are there, so it will be more crowded as well. So other than camel walk, आपका कैमल राइड हो जाती है, कैमल कार्ट राइड मिल जाती है, इसके अलावा आप पैरासेलिंग भी कर सकते हैं। सम सैंड ड्यून से लगभग 6 किलोमीटर पहले लोकेशन आती है ऑन द मेन हाईवे इटसेल्फ, वेयर यू कैन फाइंड सम पीपल डूइंग पैरासेलिंग, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जीप सफारी इज ऑल्सो अवेलेबल। सो जीप सफारी एक चीज आइटम जो आप सम ड्यून्स में नहीं कर सकते, एक आप यहाँ पे आपके लिए अलग से पार्टी नहीं की जा सकती। दूसरा, आप यहाँ पे अगर कोई सम ड्यून्स के ऊपर सोना चाहे तो वो सो नहीं सकता। शाम होने के बाद पुलिस वहाँ पे होती है अवेलेबल और वो आपको सबको हटा देती है। वेयरएज अगर कोई एक्सपीरियंस लेना चाहता है कि ड्यून्स के ऊपर सोना चाहता है, वी कैन अरेंज दैट थिंग, बट इन द खुर्री ड्यून्स, नॉट इन द सैंड ड्यून्स। The fourth city is called as Udaipur, undoubtedly one of the most beautiful city in Rajasthan. It is also called as the white city. Reason is same. जैसे जैसलमेर में पत्थर जो है that was sandstone in the yellowish color, it is the availability of the white marble stone nearby Udaipur. तो जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग उदयपुर था उसमें white मार्बल को यूज करके बिल्डिंग्स ज्यादा बनी, so it becomes familiar for the white city. This is Taj Lake Palace in between the Lake Pichola. This is City Palace, one of the most visiting destination by in Udaipur. इसके अलावा आप जो जगह देख सकते हैं, दैट इज बागोर की हवेली। बागोर की हवेली में आपको कल्चरल एक्टिविटीज बिलोंगिंग टू राजस्थान, आपको वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं शाम को। फूड इज ऑल्सो अवेलेबल, सो दिस इज द गेट टुवर्ड्स इट एंड दिस इज इन बिटवीन द एक्टिविटीज आर देयर इन बागोर की हवेली। इसके अलावा लेक पिछोला जहाँ पे ताज की प्रॉपर्टी है, जो ये टॉम्ब देख रहे हैं दैट इज बिलोंग्स टू ताज, और ये ताज की ही बोट है जिसमें लोग आ रहे हैं। द डांस इज हैपनिंग ओवर देयर, सो दैट कैन बी अवेलेबल एज वेल। अनदर जयपुर इज उदयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लेक सिटी एज वेल। इसमें बहुत एक नहीं है, दो नहीं है, 2-3 लेक तो शहर के अंदर ही हैं, और शहर के आसपास भी थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो 2-3 लेक्स और आती हैं। वन ऑफ them is Fateh Sagar Lake. Fateh Sagar Lake is very famous lake in Udaipur after Lake Pichola. यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेटरी भी है जहाँ से एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया की तरफ से वहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमी लगाई गई है जिसमें लोग देख सकते हैं। उसी के कोने पे जो है दैट इज वहां से आपको साफ साफ दिखता है, दैट इज सज्जनगढ़ फोर्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मॉनसून फोर्ट एज वेल। इसमें आप डे विजिट भी जा सकते हैं, और दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अ होटल एज वेल, सो इफ एनीवन वांट दे कैन स्टे ओवर हियर एज वेल। अनदर लोकेशंस इन उदयपुर, सहेलियों की बाड़ी, दैट मीन्स जो रानी की सहेलियां थी वो उनके साथ यहाँ पे रानी आके घूमती थी, दैट इज द लोकेशन इज। देन वी हैव जगदीश टेम्पल, दैट इज भगवान राम का टेम्पल है, भगवान जगदीश। When now we move towards the outer area of Udaipur, nearby places, that is Ekling Ji temple. Ekling Ji, that means it belongs to Shankar Bhagwan. Other than this, we have Jain temples nearby, very famous Jain temples. Ranakpur is one of them. Then we have Kumbhalgarh Fort, you can visit. It is also the second largest wall in the world after Great Wall of China. China की सबसे लंबी वॉल है, we all know, it is around 3000 kilometers.
एंड जो सबसे लंबी सेकंड वॉल है वो कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार है, जो अब ये दीवार देख रहे हैं, द गर्ल इज सिटिंग ओवर देयर, एंड दिस वन, इसकी जो पूरी लेंथ है दैट इज 42 किलोमीटर्स इन लेंथ। एंड वी हैव कुंभलगढ़ के पास ही है, वी हैव नाथ द्वारा, इस भगवान कृष्ण जी का टेम्पल है, ये बहुत ही फेमस, तो यू कैन विजिट नाथ द्वारा एज वेल। Next location is Mount Abu. Mount Abu is the only hill station of Rajasthan. It is close to the Gujarat border, so बहुत सारे, it is a weekend destination for all Gujaratis, and it is also the highest point. Mount Abu has the highest point in Aravalli mountain range, which is the oldest mountain range of the world as well. Dilwara Jain temples you can visit nearby. Then दिलवाड़ा जैन टेम्पल के जस्ट 2 किलोमीटर उनके पीछे ही ट्रेवर्स टैंक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिगेटर्स मिल जाएंगे देखने के लिए। और इसके अंदर जो देखेंगे वो टॉड रॉक एक लोकेशन है। इसको अगर आप साइड से देखोगे इट लुक्स लाइक ए फ्रॉग, सिटिंग फ्रॉग लोकेशन, जैसा ही पत्थर नेचुरली है ये। So, and the beauty from there is looking always good. Then we have a sunset point in Mount Abu where you can feel the sunset. आप you are in the top, and उसके बाद आपको कुछ कोई पहाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत दूर तक आप देख पाते हैं साफ साफ। Then we have Raghunath Ji temple in the city and Om Shanti Bhavan. Om Shanti Bhavan जो है it belongs to यूनिवर्सिटी एज वेल। यहाँ पे यूनिवर्सल पीस हॉल दैट इज कॉल्ड एज शांति भवन। और नेक्स्ट लोकेशन इज पुष्कर। पुष्कर जो है पुष्कर लेक के पुष्कर एक लेक थी जिसके चारों तरफ थे। इट हैज 52 घाट्स ऑल अराउंड द लेक, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। पुष्कर इज होम टू द ओनली लॉर्ड ब्रह्मा टेम्पल। भगवान ब्रह्मा का एक लौता टेम्पल वर्ल्ड में जो है वो पुष्कर में ही है। और इसके अलावा इट इज फेमस फॉर द पुष्कर फेयर एज वेल। पुष्कर में देखने के लिए पुष्कर फेयर इज देयर। दीज आर द फ्यू पिक्चर्स ऑफ पुष्कर फेयर which is held usually in November. It is basically a cattle fair, camel fair होता है basically, but for the pictures and all the other stuff, it is a very famous worldwide. This is the picture of Brahma ji का temple है, and this one is on the right side is Savitri temple. सावित्री टेम्पल के लिए रोपवे अवेलेबल है, इट इज ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, तो वहां के लिए आप रोपवे भी अवेलेबल है। और ब्रह्मा जी का टेम्पल अब नीचे ही है शहर के अंदर। तो वहीं से आपको लगभग 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अजमेर सिटी है। पुष्कर हाईवे से अंदर की तरफ है, अजमेर इज ऑन द हाईवे ओनली। सो अजमेर इज होम टू द श्राइन ऑफ मुस्लिम सूफी सेंट गरीब नवाज ख्वाजा नवाज, जिसको अजमेर शरीफ भी बोलते हैं। अजमेर में जो अजमेर श्राइन है, इसके अलावा अजमेर शरीफ के अलावा कुछ ब्यूटीफुल बड़े सुंदर जैन टेम्पल्स हैं। बहुत सारे लोग उनको देखते नहीं है, बट आई कैन अश्योर इफ यू विजिट देम यू विल फील गुड एज वेल। See, these are the two temples, नासिया जैन टेम्पल एंड नरेली जैन टेम्पल। सो ये एक डिजाइन अंदर बनाया हुआ मेड ऑफ गोल्ड, लुक्स अल्टीमेट। if the customer visit or you want to visit this location, looks always good. Next our city is Bikaner. Bikaner is surrounded by the Thar desert as same like Jodhpur, Jaisalmer. It is famous for Karni Mata temple, which is also called as a rat temple. ये करनी माता है, करनी माता के टेम्पल के अंदर वहां पे thousands of rats वहां पे घूमते हैं।
इनफैक्ट जो आपको उनको दूध पिलाया जाता है उसी दूध से को चरणामृत के तौर पे यूज किया जाता है। पहले भोग जो है चूहों को लगाया जाता है, उनके खाने के उसी में से प्रसाद के तौर पे दिया जाता है। बट आज तक कभी प्लेग नहीं हुआ। इनफैक्ट जब जब बाकी इंडिया में कई बार प्लेग की डिजीज फैली, तब भी यहाँ पे कभी प्लेग की बीमारी नहीं हुई। सेम लाइक पुष्कर, वी हैव बीकानेर कैमल फेस्टिवल which is very famous as well. Then we have two palaces, Lakshmi Niwas Palace, which is a hotel right now as well, and then we have Junagadh Palace. Again, it is converted into hotel as well. So these are two. After this, बीकानेर में और ज्यादा बहुत कुछ देखने के लिए इतना नहीं है। इसके आसपास आप ओशियन डेजर्ट है, आप पास में ही डेजर्ट में सेम फीलिंग विद द सैंड ड्यून्स इज आल्सो अवेलेबल, नॉट द बिग ड्यून्स लाइक जैसलमेर, बट yes, Bikaner do have some dunes and the desert available. Next we come towards the wildlife portion, and you cannot think about Ranthambore. Ranthambore is located in Savai Madhopur district, which is called the Tiger City because of the tiger reserve as Ranthambore. Ranthambore, there was a tigress called as Machli. Tigers की जो life है in jungle is considered around 12 to 14 years. Machli was she died in 2016. She was the most picturesque tigress ever done. उससे ज्यादा पिक्चर आज तक किसी टाइग्रेस वाइल्ड टाइगर की नहीं ली गई है। रीजन इज एक्सट्रीमली सिंपल एज वेल, शी लिव्ड फॉर 19 years. तो और कोई टाइगर इतना रहता ही नहीं, एंड शी वाज वेरी, जब भी उस आपके लोगों के हाथ में कैमरा दिखता था वो रुक के खड़ी हो जाती थी, यू कैन टेक माई पिक्चर्स, आई एम ओपन। she was a good model for everyone. And आज के डेट में अगर जब भी कोई फॉरेन सेलिब्रिटीज आते हैं, they want to see the tiger, their first choice is naturally Ranthambore National Park. इसके अलावा Ranthambore Fort is there. Ranthambore Fort is 1000 years old and one of the most attacked fort. Reason is वेरी सिंपल कि इसका जो लोकेशन है वो ऐसी थी कि आपको अगर गुजरात की तरफ आना है और ट्रेडिंग के लिए आपको गुजरात जाना ही पड़ता था। दिल्ली इंडिया का सेंटर बनता था, पावर सेंटर, और राजस्थान आने के लिए आपको सबसे पहले जो लोकेशन पहुंचती थी वो रणथंभौर आते थे। तो रणथंभौर को जीतना इस लॉजिकली बहुत जरूरी होता था, इसलिए इट वाज अटैक्ड बाय ईच एंड एवरी डायनेस्टी जो भी रहा, जिसने हर एक ने इसको कैप्चर करने की कोशिश करी। इट वाज लास्ट इन द कंट्रोल ऑफ महाराजा ऑफ फैमिली ऑफ जयपुर, एंड इट वाज यूज्ड एज ए हंटिंग ग्राउंड, जिसकी वजह से बाद में रणथंभौर फोर्ट बना, जिसकी वजह से रणथंभौर नेशनल पार्क बना है बाद में। सो दिस इज वन ऑफ द, इसके अंदर ही आपको गणेश टेम्पल है, वेरी फेमस टेम्पल। हजारों लोग आपको गणपति पूजा के टाइम में वहां पे आपको मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ सफारी तो आपको है ही है, वी हैव टाइगर्स, मेन प्रेडेटर टाइगर है, लेपर्ड है, आपको ब्लैक बियर मिल जाएगा जिसको स्लोथ बियर भी बोलते हैं। देन बहुत सारे लोग जो रणथंभौर पहुंचते हैं, they don't know that yes, from just 25 kilometers from there the Chambal river is also available, and that is a part of Chambal National Park. and Chambal पे आपको रिवर सफारी होती है बोट के अंदर, and you can find crocodile और घड़ियाल बोथ एक ही जगह में आपको दोनों दिखते हैं।
so you can visit this as well. Then we are moving towards some offbeat locations जो कम सेल की जाती हैं, but this can be usually utilized very well अगर हम चाहें तो. One of them is Kota. Kota is not only for the education city जहाँ पे मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कोचिंग करने के लिए जाते हैं, बट इट इज ए गुड सिटी on the bank of the Chambal River. That is India's first seven wonders park is made on the bank of the river. अगर आप ये देखेंगे, ये जो लाइट के लैंप्स दिख रहे हैं, इसके साथ में चंबल नदी जा रही है, और ये आपको जो 7 हमारे वंडर्स हैं, 7 वंडर्स, ओल्ड वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे पीसा की झुकती मीनार आपको दिख रही है, देन वी हैव एफिल टावर एज वेल. So all the 7 wonders are available in the same location. आसपास देखेंगे तो इसके बाहर जो हम निकलेंगे तो गराड़िया महादेव, you have seen the ad of Rajasthan tourism, the scene is there on the, यहाँ पे कॉर्नर पे गराड़िया महादेव का टेम्पल है. तो ये this looks awesome during the monsoon season. मानसून में आप जाते हैं, भर जाती है पूरी रिवर और सीनरी पूरी ग्रीन हो जाती है, तो बहुत अच्छी दिखती है. इसके अलावा कोटा इज ए लोकेशन वेयर यू कैन, अगर आप बहुत सारे आपको वाटरफॉल भी है अवेलेबल. बहुत कम लोगों को पता है कि कोटा के अगर हम 100 किलोमीटर के अंदर जाएंगे तो वी हैव अराउंड 5 वाटरफॉल्स अवेलेबल विद इन कोटा. भंवरकुंज इज वन ऑफ देम, गपेरनाथ, ये दोनों पास पास हैं, लगभग 25-30 किलोमीटर के रेंज में ही है. और इसी के भी इन दोनों के पास में ही आपको जो है, जो हमारे लास्ट वाली लोकेशन थी गराड़िया महादेव, भी इनके पास में ही है. सो वी कैन विजिट ऑल 3 लोकेशंस विद इन ए डे. नाउ वी कम टू द सरिस्का, क्लोजर टुवर्ड्स दिल्ली. सरिस्का नेशनल पार्क इज इनटू अलवर डिस्ट्रिक्ट, लोकेटेड जस्ट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली. इसको हम आज भी एज ए वीकेंड डेस्टिनेशन के तौर पे प्रमोट बहुत कम लोग करते हैं, बट वी कैन डू इट वेरी वेल एज वी हैव 3 स्टार 4 स्टार होटल्स तक अवेलेबल इज देयर. इट इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया वेयर यू कैन एंटर इट ऑन योर ओन कार. वी डोंट रिकमेंड इट. सफारी अवेलेबल नहीं, आप अपनी गाड़ी से सफारी नहीं कर सकते. There is a Pandupol temple of Hanumanji in between the Sariska National Park, where you can visit on Tuesday and Saturday. आप अपनी परमिशन, वहां पे आपको गेट पे आपको आईडी प्रूफ दिखाना होता है. आप अपनी गाड़ी लेके अंदर जा सकते हो पांडुपोल टेम्पल तक. रास्ता खराब है बिकॉज वो पक्का नहीं बनाए हुए, तो आप वहां तक जा सकते हो अपनी गाड़ी लेके और वापस आ सकते हो. आपको you are not allowed to go inside anywhere. Even we don't recommend it कि आप अपनी गाड़ी लेके जाएं. आपको, आप जिप्सी में सफारी करने जाएंगे तो आपको गाड़ी वाला भी आपको पांडुपुल टेम्पल दिखा देगा. Other than the national park, this national park is a small national park with यहाँ पे 8 tigers are available as per the tiger census in last year. And around this we have Silisere Lake and Neelkant Mahadev temple. Silisere Lake is on your left hand side, और इसके साथ ही आप सिलिसरे पैलेस भी है जहां से पिक्चर ली गई है. And left hand side is Neelkant Mahadev temple. These two locations, Neelkant Mahadev temple is just close to the entry point, and Silisere Lake is around 20 kilometers from there. इसी के साथ आप सरिस्का के पास में अगर आपको जाना चाहें तो वी हैव भानगढ़, विच इज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया. इसमें आप जा सकते हैं, देख सकते हैं. half of the portion is not allowed to enter by anyone. Some part is open for the public. You can visit there, that portion, but the rest portion is not allowed to go. Anyone
Then we have our weekend destination for Delhiites, that is Neemrana. Neemrana is famous for the Neemrana Fort basically. It also have the longest zip line in India, which is around 2 kilometers in length. और वो जो है इसके एक पोर्शन के फोर्ट के बिल्कुल साथ से जाती है, ऊपर से जाती है, एंड लुक्स ब्यूटीफुल. सो यू कैन विजिट, you can have a zip line over there. Now some totally different offbeat locations. One is Javai. Javai is basically near Javai Dam, around 150 kilometers from Jodhpur, और पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये. It is famous for leopard sightseeing. Usually leopards are solitary animals, that means वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं. But जो ये धारणा है उनके लिए, जो the belief people think that leopards are single animals, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं. आप यहाँ आओगे तो आप उनको झुंड में भी देखोगे. You can have the सबसे बड़ा जो इनका ग्रुप है, that have 15 leopards in it, of the basically of the same family. और वहाँ के आसपास गांव में कोई खतरा नहीं महसूस होता लोगों को. They feel very easy and comfortable if they see a leopard nearby their cattle. कई बार जब ये भूखे मर रहे होते हैं, उनकी कैटल्स को भेड़ बकरियों को ले जाते हैं, मार देते हैं. They don't feel bad about it. So यहाँ पे भी आपको लग्जरी कैंप्स अवेलेबल हैं. और इसके साथ साथ जवाई डैम इज नियर बाय. जवाई डैम में आपको एलिगेटर्स मिल जाएंगे, देखे जा सकते हैं, एंड गुड अमाउंट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आर आल्सो अवेलेबल. अब हमने बर्ड्स की बात करी तो वी कैन नेवर फॉरगेट अबाउट और भरतपुर. भरतपुर was called as भरतपुर. पहले जो है इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलते थे. नाउ इट इज कॉल्ड एज Kiladio Ghana National Park, which is famous for the migratory birds. We can add this location while in our Golden Triangle tour as well, because it is just 225 kilometers from Delhi and 50 kilometers from Agra. तो हम आगरा अगर हम एक नाइट उनको यहाँ एक्सटेंड करके यहाँ दे दें, तो they can have a good wildlife, good bird, and it is the only national park in India जहाँ पे सफारी आपको पैर चलाने वाली रिक्शा से या ई रिक्शा से होती है, नॉट बाय एनी जिप्सी. बिकॉज यहाँ पे प्रेडेटरी एनिमल्स कोई नहीं है. यहाँ पे आपको नील गायें, एक दो फॉक्स मिल्स दिखती हैं, या फिर आपको बेसिकली बर्ड सेंचुरी के द्वारा बर्ड्स मिलेंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स. दिस इज पिक्चर ऑफ साइरस क्रेन. क्रेन आपको मिलेगा, बहुत सारे और भी बर्ड्स आपको पेंटेड स्टॉक है, वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब कुछ और स्टैंड अलोन डेस्टिनेशंस हैं, उनको भी देखेंगे. जैसे सालासर बालाजी टेम्पल है. इट इज डेडिकेटेड टू बजरंगबली हनुमान जी. इट इज अराउंड 175 किलोमीटर्स टुवर्ड्स बीकानेर. अगर आपके गेस्ट बीकानेर जा रहे हैं तो बहुत से लोग बजरंगबली के भक्त होने के कारण यहाँ पे आते हैं. एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे इट इज जैम पैक्ड. Then we can have a Shekhawati and Shekhawati area, which is the biggest open art of vibrant colors. आपको इस तरह के जो पेंटेड घर हैं आपको पूरे एरिया में मिल जाएंगे. तो आपको पेंटिंग देखने के लिए किसी म्यूजियम में जाने की जरूरत नहीं है. You can just go into the streets and find these wonderful paintings done in the Shekhawati region. Shekhawati is around 115 kilometers from Jaipur, and Mandwa with Mandwa Fort is around just 60 kilometers ahead of Shekhawati. So we can visit both these locations very well. Now we can go to another offbeat location towards Jaisalmer, the Not Mata Temple and Longewala War Memorial. You have seen the movie Border, which is based on the Indo-Pak War of 1965, जिसमें सनी देओल was the lead.
तो उसमें एक सीन था वेयर द पाकिस्तान 3,000 बॉम्ब एक गांव के ऊपर डाले फेंके थे उन्होंने. The whole village was destroyed. Only a small temple was left behind. That was the Not Mata temple. If you go there, it is around 150 kilometers from Jaisalmer, and Longewala is 120, and 30 kilometer is the Not Mata temple from there. So 150 kilometers is one way, so you can come back easily because 150 kilometers will not more take more than 3 hours to visit. लोंगेवाला वॉर मेमोरियल इज द लोकेशन जहाँ पे वो फिल्म का लोकेशन दिखाई गई है. द उनके पाकिस्तानियों के जो हमने टैंक्स को कब्जे में किया था उनके गाड़ियां आज भी वहीं पे पड़ी हैं. तो यू कैन मेमोरियल में जाके वो देख सकते हो कि दिस टैंक्स आर. और तन्नोट माता टेम्पल में आज भी देयर आर सम नॉट लाइव बॉम्ब्स. उनको डिफ्यूज करके दे हैव केप्ट सम बॉम्ब्स इन द टेम्पल इटसेल्फ जो दिखाते हैं कि वहां पे सब पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया था. दे बट द टेम्पल वाज स्टिल इंटैक्ट. नियर बाय जैसलमेर we can have some another beautiful location called as Badmer. Badmer is around 160 kilometers from Jaisalmer and 210 kilometers from Jodhpur. So we can have a very good desert over there. You can feel some other locations. जो नीचे वाली लोकेशन है दिस इज वो गलती से बाड़मेर लिखा गया है. दिस इज नॉट बाड़मेर, दिस इज पोखरण. पोखरण इज द साइट फॉर न्यूक्लियर टेस्ट. Unfortunately, we are not allowed to go to the nuclear test site in Pokhran, but you can visit the cenotaphs of Badmer, and the Badmer Palace fort is there to visit. It is in between Jodhpur and Jaisalmer, 110 kilometers from Jaisalmer side and 170 from Jodhpur. अगर आप if your customer or you are traveling by train to Jaisalmer, so this picture was taken by me from the train. The train से picture ली गई. You can see the this beautiful location from the train itself. हम ऑफबीट लोकेशन में पहुंचते हैं उदयपुर के पास चित्तौड़गढ़. अभी कुछ दिन पहले हमने एक मूवी आई थी पद्मावती, रानी पद्मावती के बारे में. दैट बिलोंग्स टू दिस लोकेशन. यूनेस्को, इट इज ए वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट. रानी पद्मावती यहीं से थी जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पे कई बार अटैक किया. So for some itineraries, we can send you this presentation on your mail. We have made a few itineraries. There are many itineraries which can be made, and this is my details which you can use it.